A peace rally was taken out by Rashtriya Christian Morcha and various organizations in Balaghat to address the increasing violence and atrocities against the Christian community in India, through which a memorandum was given to the District Collector's Office in the name of His Excellency, the President. Various organizations said that this peace rally was taken out to violate the fundamental rights enshrined in the Indian Constitution. In the memorandum addressed to the President, it was stated that this memorandum was sent by the National Christian Front, Bharat Mukti Morcha, and related social organizations in response to the violence being perpetrated by Christians, especially on SC, ST, and OBC backgrounds, in many states. Discrimination and systemic injustice, and are being subjected to deep suffering. As committed citizens, we appeal to your leadership to address these threats that endanger the secular democratic fabric of our republic. Christians, who make up 2.3% of India's 1.4 billion people, have always upheld the Constitution's values of patriotism, fraternity, equality, and liberty, which includes the freedom to profess, practice, and propagate our faith. The Christian community is facing an alarming rise in targeted violence, particularly those from indigenous Bahujan backgrounds, according to data from the United Christian Forum, UCF. Christians, particularly those from indigenous Bahujan backgrounds, faced 834 incidents of violence and harassment in 2024, up from 734 in 2023, and almost 4 times the 147 incidents in 2014, according to data from the United Christian Forum, UCF. Many incidents are not reported due to fear. The highest number of cases have been reported in Uttar Pradesh, 188, Chhattisgarh, 150, Rajasthan, 40, Punjab, 38, and Haryana, 34. Role of right-wing organizations. Rashtriya Swayamsevak Sangh, RSS, which promotes a tolerant vision of a Hindu Rashtra centered around Brahminical religion and culture. Bharatiya Janata Party, BJP, and its affiliates such as Vishwa Hindu Parishad and Bajrang Dal. They have been mostly responsible for promoting hostility and violence against the Christian community. After submitting the memorandum addressed to the President at the District Collector's Office, the leaders of all the organizations told the Great News Hindi team that क्रिश्चियन समुदाय के ऊपर बढ़ते हुए अत्याचारों को लेकर आज बालाघाट के जिला दंडाधिकारी कार्यालय में राष्ट्रपति के नाम आज क्रिश्चियन मोर्चा के द्वारा वही समस्त SC ST OBC संगठन के कई मोर्चों के द्वारा आज एक शांति रैली निकालकर ज्ञापन दिया गया है राष्ट्रपति जी के नाम। मुख्य मांगे क्या है वे देखिए इस वीडियो के माध्यम से। मैं गौरव कुमार और आप देख रहे हैं ग्रेट न्यूज़ हिंदी। मैं नर्मदा नागवंशी, राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ की संभागीय प्रभारी एवं राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल संगठन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, सभी मोर्चों का मैं प्रतिनिधित्व कर रही हूं और मैं सभी लोगों पर जो धर्मांतरण संगठन बनाकर RSS और उसके साथी संगठन देश के इन मूल निवासियों पर क्रिश्चियन, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, लिंगायत, आदिवासियों पर, SC ST OBC पर, तमाम लोगों पर जो अन्याय, अत्याचार, बलात्कार और उनकी हत्याकांड हो रही है देश भर में, ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है। सोशल मीडिया के माध्यम से न केवल यह राष्ट्रीय खबर है वरन यह भारत में जो हो रहा है यह अंतर्राष्ट्रीय खबर भी है। तो साथियों, हमारा देश संविधान से चलता है। यहाँ जो भी सरकारें बनती है वो संविधान की शपथ लेकर के सरकार चलाते हैं और अभी वर्तमान में RSS के साथ, बजरंग दल वगैरह के साथ, यानी गुंडागर्दी करने वाले लोगों के साथ स्थानीय प्रशासन और पुलिस वाले भी उनका साथ देकर भारत के मूल निवासियों पर भयंकर अन्याय, अत्याचार, महिलाओं के साथ बलात्कार, उत्पीड़न, उनका अपमान किया जा रहा है। तो हम सम्मानीय हमारी राष्ट्रपति जी से शांति और सम्मान के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए
और भारत की संविधान की मर्यादा के लिए हम अनुरोध करते हैं। हम सभी संगठनों के लोग, जो मैंने अभी पूर्वोक्त में बोली हूँ, उन सभी संगठनों की ओर से माननीय राष्ट्रपति जी से हम अनुरोध करते हैं कि शांति और सम्मान के साथ हमारी सुरक्षा की जाए। और यह सब इस देश में अन्याय अत्याचार एक ईवीएम मशीन से हो रहा है। अगर इस देश में बैलेट पेपर से चुनाव हो तो इस देश में नाजायज सरकारें नहीं बनेंगी, ईमानदारी से सरकारों का चयन होगा, हमारे वोटों की चोरी नहीं होगी और हमारे मूल निवासियों पर अत्याचार नहीं होगा। जो वर्तमान में बड़े पैमाने पर मणिपुर में जो भारी हिंसा और अभी भी हो रही है, वहाँ से उनको जल जंगल जमीन से हटाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की हिंसा, देश के सभी हिस्सों में जहाँ पर भी आदिवासी मूल निवासी हैं, उनके साथ जो भयानक अन्याय अत्याचार हो रहा है, हिंसा हो रही है, उनसे जल जंगल जमीन छीनने का मामला है और जल जंगल जमीन छीन करके पूंजीपतियों को देने का मामला है। जो वर्तमान में हैदराबाद में एक अदानी नाम के एक पूंजीपति को वहाँ की 400 एकड़ जमीन दी गई और उस जंगल में भारी संख्या में जानवर थे। उन जानवरों को खदेड़ा गया, मारा गया, वहाँ जेसीबी चलाई गई और वृक्षों को, जंगल को काटा गया। इस तरीके से हम लोगों के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, ये बंद होना चाहिए। हम भारत शासन से ये अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं। धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय भारत, जय। मैं बिस्सा पूर्णेश्वर सोनटक के सिनोडाइसिस बालाघाट की ओर से और राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा बालाघाट जिला अध्यक्ष की ओर से आज हम आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन देने के लिए कलेक्ट्रेट में उपस्थित हुए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के विभिन्न राज्यों में, चाहे छत्तीसगढ़ हो, उत्तर प्रदेश हो, मणिपुर हो, मध्य प्रदेश हो और भी अन्य ज़िलों में और राज्यों में जिस प्रकार से मूल निवासी ईसाइयों को और मसीहों को जो प्रताड़ित किया जा रहा है, चर्च तोड़े जा रहे हैं, प्रार्थना सभा में घुस करके जो जिस प्रकार से मसीह विरोधियों के द्वारा जो गुंडागर्दी हो रही है और जिस प्रकार से मसीह बहनों के साथ में छेड़छाड़ और बलात्कार के जो केस हो रहे हैं, इसके ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाना चाहिए। इसलिए आज हम इसकी घोर निंदा करते इस प्रकार के अपराधों का हम घोर निंदा करते हैं। और मेरा निवेदन है आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया से कि वो भारत के ऊपर में हो रहे मूल निवासियों के ऊपर में जो अत्याचार हो रहे हैं, मूल निवासी ईसाइयों के ऊपर, मसीहों के ऊपर में जो अत्याचार हो रहे हैं, इस बात को संज्ञान में। मैं विकास खंडेलकर, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क कार्यकारी अध्यक्ष। वर्तमान में जो बोध गया जो टेम्पल है, हमारा बुद्धिस्टों का जो आस्था का केंद्र है, उसके ऊपर में लगभग 3 महीने से हमारे बौद्ध भंते और बौद्ध उपासक उपासिकाएं वहां पर बैठे हुए धरने पर। उनके ऊपर में जो अत्याचार हो रहे हैं, वहाँ बिहार की पुलिस जिस तरीके से उनको मार रही है, पीट रही है, और जो भंते विनय आचार्य जी हैं जो अभी भी जेल में बंद हैं, तो हम हमारे जो बौद्ध गया जो हमारा आस्था का केंद्र है, जहाँ पर तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, जो ज्ञान स्थली है तथागत बुद्ध की, वो पूर्ण तरह बौद्धों को उसका नियंत्रण दिया जाए, उसका मैनेजमेंट पूर्ण तरह बौद्धों के हाथ में रहे, वो हमारी जायज़ मांग है। और जो BTMC एक्ट है जो संविधान के पूर्व बना गया है और संविधान लागू होने के पहले जितने भी कायदे कानून है वो सारे के सारे संविधान लागू होने के बाद वैसे ही समाप्त हो जाते हैं, फिर भी BTMC एक्ट को ढोया जा रहा है और वहाँ पर गैर बौद्धों को ज़बरदस्ती हस्तक्षेप करके वहाँ पर बिठाया गया है। तो ये जो एक असंवैधानिक कार्य जो चल रहा है BTMC एक्ट के तहत, उसको रद्द किया जाए। और महामहिम राष्ट्रपति महोदया से हमारा निवेदन है कि बोध गया का जो मामला है, जिस पर बौद्धों का जो आस्था जुड़ी हुई है, उस पर संज्ञान ले और इस पर सुप्रीम कोर्ट, भारत का सुप्रीम कोर्ट इस पर जल्द से जल्द फैसला करे और बौद्धों को उनका विरासत मिले। सुशील कुशराम, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद जिला अध्यक्ष बालाघाट। उपस्थित यहाँ सभी बामसेफ के सभी भारत मुक्ति मोर्चा के सभी सहयोगी संगठनों को और आए हुए सभी मेरे साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने इस आंदोलन में साथ सहयोग दिया। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि पूरे देश भर में जो आज 75 साल हो गए देश की आज़ादी में, लेकिन आज फिर भी जो है आदिवासियों के साथ में पूरे देश भर में जो उनके साथ अन्याय, अत्याचार और शोषण और भी जो RSS और BJP के द्वारा जो आदिवासियों के ऊपर, ईसाइयों के ऊपर या तमाम ST, SC, OBC एंड माइनॉरिटी के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, तो मैं महामहिम महोदया से निवेदन करूंगा कि आप इस पे कड़ी निगरानी रखें और आप इस पे जो है निगरानी रखकर इस पे जल्द से जल्द इसको ख़त्म करने का कष्ट करें। मैं भुवनेश्वर पटले, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला संयोजक बालाघाट।
आज हम लोग यहाँ कलेक्टर महोदय के यहाँ ज्ञापन देने आए हैं रैली के माध्यम से। और यह ज्ञापन राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा, जिनको आज हमारे देश की सरकार आने वाले समय में डीलिस्टिंग करेगी, उसको लेकर उनके अत्याचार हो रहे हैं, उनको लेकर भी धरना प्रदर्शन है। और हमारे सहयोगी संगठन जितने भी हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, आदिवासी एकता परिषद, तो मैं जहाँ तक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की बात करूँ तो पिछड़ा जो जाति है हमारी 52%, देश की कुल आबादी से 2% हमारी आबादी ज़्यादा है। उसके बाद भी सरकार ने अभी तक हमारी जाति आधारित गिनती नहीं कराई। और उसकी वजह शायद सरकार जानती होगी, सरकार जो बनती है मनुवादियों की, वो जानते होंगे कि गिनती क्यों नहीं कराना है। हमारा सरकार से ये है, राष्ट्रपति महोदय से भी है कि जो आने वाली जो गिनती होगी वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के पिछड़ों की गिनती होगी। तमाम मुद्दों को लेकर ईवीएम हैं, किसानों के मुद्दे हैं, और ये कार्यक्रम हमारा जो चलते रहता है लगातार। इसी माध्यम को लेकर आज हम लोग यहाँ पूरा मूल निवासी बहुजन समाज इकट्ठा होकर आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंप रहे हैं। साथियों, मैं सदाशिव हरिनखेड़े, बहुजन क्रांति मोर्चा एवं राष्ट्रीय किसान मोर्चा का जिला संयोजक हूँ। आज जो देश में अन्याय अत्याचार हो रहा है, जैसे क्रिश्चियनों पर अन्याय अत्याचार हुआ, ये सब कारण है, यानी समस्या है। इसका साथियों जो कारण है वह कारण है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होने की वजह से, इससे चुनाव होने की वजह से सरकार तानाशाह हो गई और मन मर्जी काम कर रही है। और इस देश में चारों स्तंभों पर जो लोकतंत्र के 4 पिल्लर होते हैं, उन पिल्लरों पर ब्राह्मणों का कब्जा हो गया। तो कहा जा सकता है कि इस देश में जितने धर्म विरोधी और ये अन्याय अत्याचार जो हो रहा है भारत में, जो भी हो रहा है वो ब्राह्मणों के द्वारा होता है। ये हमारे लोग बताते नहीं, छोटे दल के लोग बताते नहीं, छोटे पार्टी के लोग बताते नहीं, छोटे संगठन के लोग बताते नहीं। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं आने वाले समय में ईमानदार अगर सरकार है तो ईमानदारी से चुनाव कराए और वो बैलेट पेपर से चुनाव कराए, तब हम मानेंगे कि वो रेस में आगे है करके। तो हम विनती करते हैं मतलब सरकार से कि वो आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव। मैं जितेंद्र गोयल, बहुजन मुक्ति पार्टी जिला प्रभारी। आज बहुजन क्रांति मोर्चा और उसके जो सहयोगी संगठन हैं, जिसमें राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा, ये तमाम संगठनों के माध्यम से आज जो मूल निवासी बहुजन समाज के जो लोग हैं और जो धर्म परिवर्तित लोग हैं हमारे, उन पर आए दिन देश भर में जो अन्याय और अत्याचार हो रहा है, इसके खिलाफ आज महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम ज्ञापन सौंपा गया है कि जो भी अत्याचार मूल निवासी हमारे ईसाई भाइयों पे हो रहा है वो बंद होना चाहिए। जो उनके चर्च पे घुस के जो तोड़फोड़ की जा रही है, ये सारी घटनाएं जो हो रही है धर्म के नाम पे, ये सब बंद होना चाहिए। इस पे हम बहुजन मुक्ति की पार्टी की ओर से समर्थन करते हैं और इसकी घोर निंदा भी करते हैं ऐसी घटनाओं का। और आगामी समय में ये सब नहीं होना चाहिए देश में, ऐसी हम मांग राष्ट्रपति महोदय से करते हैं। और ये जो तमाम घटनाएं देश में हो रही है, ये ईवीएम मशीन के माध्यम से हो रही है, क्योंकि आज जो सरकारें देश में चुनकर आ रही है वो ईवीएम मशीन के माध्यम से चुनकर आ रही है, ये जनता के वोटों से चुनकर नहीं आ रही है। इसीलिए ये इतना अन्याय और अत्याचार इस मूल निवासी समाज पे कर पा रहे हैं। इसलिए हम सरकार से ये भी निवेदन करते हैं कि ये ईवीएम मशीन को बंद करके पुनः बैलेट पेपर से चुनाव आगामी समय में कराएं। मैं रजौर राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा अध्यक्ष बालाघाट। आज जो हमने ये रैली निकाली है राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के समर्थन में, हम इसका समापन कर चुके हैं। और जो भी हमारे देश में आज एक इंसान को एक इंसान के प्रति जो खड़ा किया जा रहा है वो सब नहीं होना चाहिए। जियो और जीने दो की पॉलिसी का जो हनन हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए हमारे देश की समस्त आदिवासी, क्रिश्चियन, मुस्लिम और समस्त देश के नागरिक एक रहकर अपने देश को आगे बढ़ाना। मैं रामदास ठाकुर, प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, और आज राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के माध्यम से रैली प्रदर्शन का कार्यक्रम जो मूल निवासी ईसाइयों पर जो आए दिन अत्याचार हो रहे उसके इसके विरोध में रैली प्रदर्शन हमारे माध्यम से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से किया गया। और हम चाहते हैं कि ये जो रैली प्रदर्शन कर जो ज्ञापन दिया गया, इस ज्ञापन के माध्यम से यह सारा उनका जो अत्याचार है, जो अत्याचार किया जा रहा है SC ST OBC भाइयों पर और ईसाई भाइयों पर, तो वो अत्याचार बंद हो और धर्मांतरण का जो
जो एक नाम से जो अत्याचार थोपे जा रहे हैं वो भी बंद। बहुजन समाज के जो संगठन थे वही क्रिश्चियन समुदाय के संगठन है, वही मुस्लिम समुदाय के भी, इन्होंने इस शांति रैली के माध्यम से राष्ट्रपति जी के नाम एक ज्ञापन दिया गया है और उसमें क्रिश्चियन समुदाय के ऊपर हो रहे अत्याचारों को बंद करने की बात की है, उन्हें खत्म करने की मांग की गई है। ये देखा जा रहा है और इस पूरे ज्ञापन में भी यही है कि जो एक मौलिक अधिकार होता है, अनुच्छेद 25 में एक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है, उसका हनन हो रहा है साथियों। यह बदलाव कब होगा ये देखना अब आगे की बात रहेगी। आप बने रहिए मेरे साथ में। मैं गौरव कुमार, बालाघाट, मध्य प्रदेश से।